to your channel for creative studies. So today we would be looking on to the paper of BEGE 142, that is of understanding drama. Okay, and this is a 6 credit code, so it is of 3 hours paper, and it is of 6 credit code, so it is of 100 marks. Okay, so if you see, this paper has come for the June 2022 term end session examination of IGNOU, and this is the paper for both the honors course as well as for general course. So let's start with today's session, and we will be doing the paper analysis of this course. So if you see, the note is answer all questions. All questions have internal choice. Okay, so there is, the instructions are given within the questions that how much you have to attempt from it. So we'll start off with section A. Okay, if you see the paper, there are 3 sections: section A, section B, section C. Okay, so let's start with the question number 1 from section A. Now if you see this thing, it is, they have said that you have to answer any 4 out of 6 options are there. Okay, if you see 6 options are there, answer any 4 out of these 6. Okay, and these are 5 marks question, so per question it is 5 marks. Okay, so it is 4 into 5, that is 20. Let's start with the first question, that is tragedy. This is located in block 1 unit 3 in page 26. So let's go on to block 1 unit 3. Okay, and I am doing the soft copy version of it, so pages might differ. So if you see in page 26, okay, you will get the definition of tragedy, what it is. Earlier we have seen in block 1 unit 1, we have seen the emergence of drama and theater, and a little bit of historical of evidences of tragedy as well as a form. Then we have seen Greek theater as well. Now here the question is tragedy, so you have to write the definition of it, that what is tragedy. So Aristotle first defined tragedy in his Poetics around 330 BC. He defined tragedy as the imitation of an action that is serious and also as having magnitude, complete in itself, the medium of poetic language, and in the manner of dramatic rather than of narrative presentation, involving incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish the catharsis of such emotion. So there is hamartia, catharsis. Hamartia is the purgation of the feeling of the audience of the pity and fear. Okay, and here are some terms. So there is tragic hero, a hero who is not thoroughly good, not thoroughly bad, but a mixture of both, but is certainly better than we are, in the sense that he is of higher ordinary moral worth. इसका मतलब यही है कि ट्रैजिक हीरो जो है, हम लोग जैसे कॉमन इंसान से थोड़े बेहतर है, बट वो टोटली गुड या टोटली बैड नहीं है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स है, इसको ज़रूर से देना है, जैसे हमर्शी हुआ, फिर ट्रैजिक फ्लॉ या ट्रैजिक एरर. ठीक है, ये है एक ट्रैजिक फ्लॉ, मतलब एक हीरो के अंदर में कोई भी एक अच्छे, मतलब जो कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसका मतलब है जैसे से सपोज मैकबेथ का हुआ, उसका एक एरर ऑफ जजमेंट है, उसका एक मॉरल वीकनेस है कैरेक्टर में. तो यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स दे देना, ऐसा टाइप अगर क्वेश्चन आए तो, क्योंकि ब्लॉक 1 का ज़्यादातर का जब क्वेश्चन आता है इन सेक्शन है, तो यू कैन गिव एग्जाम्पल्स टू मेक इट मोर एफिशिएंट. ठीक है, इसके बाद क्या है कि यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ट्रेजेडी, इसके अंदर में क्या है, प्लॉट इसके बारे में बताया गया है. तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इट, बट इट इज़ 200 वर्ड्स. तो पहले तो इंट्रोडक्शन यहाँ से होगा. अगर छोटा से यू कैन गिव इट लाइक इन 2-3 लाइन्स जस्ट टू समराइज कि ट्रेजेडी क्या है, कैसे करके इट वर्क्स, इट्स लाइक फीचर्स ऑफ द ट्रेजेडी. तो यू कैन गिव इट, एंड देन there are the next kinds of tragedy as well: revenge tragedy, domestic tragedy. So you can just give in 1-2 lines that these are some kinds of tragedy. Tragedy can be divided into these things. Okay, since tragedy is the main question, so you have to answer that. So the page is 26 and 27, block 1 unit 3. Next on, we will be going on to the next question. I hope that you all can understand the
way I am telling you all to do. Next is apparent stage. Apparent stage is in block 1 unit 1. Okay, let's go on to block 1 unit 1, that is page 16. Now page 16, if we go page 16, if we go there, then we will see that there is apparent stage, that is proscenium stage, and here is apparent stage. So they have asked apparent stage, so proscenium stage, yeah, other stage, restoration stage can also be asked, okay, in the December 2022 examination. So the basis of doing a paper analysis means that the questions can be asked from different sections from the same block, like the pattern will be almost the same. Okay. The apparent stage, what is apparent stage? So in the Elizabethan stage was typically found in public theaters, that is plays were no longer performed outside. However, it was still open air theater. Now you have to write about when it was formed, what was the thing was there, okay, and here it is written here, okay, that what you have to do. Then they have said that at one side of the courtyard projected a platform which formed the stage. So it is just like a stage, and you have to explain that what was the stage like, okay. In the center, on the either side of the platform, two pillars supported from ceiling. At the back, between two doors which served for the entrance and the exit of the actors. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक जस्ट एक स्टेज का कैसा है उसके बारे में बताया गया है। ये एलिजाबेथन पीरियड के टाइम में, थिएटर के टाइम में ये दिया गया है, ठीक है। और एप्रेन स्टेज के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कहाँ ये प्लेस होता था, ठीक है, लंदन थिएटर्स में कैसे करके हुआ था, ठीक है। तो एक थिएटर जहाँ पर प्लेस होते थे उसके बारे में, एप्रेन स्टेज के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। उसका कैसा फीचर्स था, कैसे वो प्लेटफॉर्म था, कैसे वो स्टेज दिखता था, इस चीज़ के ऊपर में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला पेज 16 को है, that is block 1 unit 1. Next we will go on to the next question, okay, that is of history play, ठीक है। हिस्ट्री प्ले जो सी नंबर क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री प्ले अगर आप देखोगे ये ब्लॉक 1 यूनिट 3 में है, ठीक है। फिर से हम लोग ब्लॉक 1 यूनिट 3 में हम लोग जाएंगे, ठीक है, दैट इज इन पेज 31, ठीक है। and if you see, most of the questions of section A is from block 1 itself. So okay, so here we will see that what is history play. हिस्ट्री प्ले का मतलब क्रॉनिकल्स के ऊपर में दिया गया है, ठीक है। पेज नंबर इज 31, इसके ऊपर में ही है, ठीक है। दैट इज ऑफ या इधर पर क्रॉनिकल प्लेस, ठीक है। यहाँ पर क्रॉनिकल प्लेस अगर आप देखोगे वे ड्रामेटिक वर्क्स, इसको हिस्ट्री प्लेस या क्रॉनिकल प्लेस भी कहा जाता है, जहाँ पर हिस्टोरिकल मटेरियल्स दिया जाता है, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे क्रॉनिकल्स से वो चीज़ को रिड्यूस किया जाता था, जैसे ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स सच एज जूलियस सीजर, रिचर्ड II, एडवर्ड I, हेनरी V आर पॉपुलर एलिजाबेथन historical plays. So this is very important when you're writing the example of it. इसका भी एक एग्जाम्पल देना है कि क्या है हिस्ट्री प्ले। इट वॉज लाइक अ क्रॉनिकल, वहाँ से प्लेज लिखा है, हम लोग देख चुके हैं। जैसे इंग्लिश क्रॉनिकल्स का रैफेल हॉलिनशेड का क्रॉनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फेमस है, ठीक है, रैफेल हॉलिनशेड, ठीक है। क्रॉनिकल्स वे रिटन अकाउंट्स इन प्रोज और वर्स। ये क्या है क्रॉनिकल, तो इसके बारे में सेकंड लाइन में बताया गया है कि क्रॉनिकल्स वे रिटन अकाउंट्स इन प्रोज और वर्स ऑफ नेशनल और वर्ल्ड वाइड इवेंट्स। तो नेशनल या वर्ल्ड वाइड इवेंट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर और भी है, जैसे पॉपुलर एलिजाबेथन हिस्टोरिकल प्लेज एंड रिसेंट एग्जाम्पल्स आर आर्थर मिलर्स क्रूसिबल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग के इनडायरेक्टली ये कोर्स पे तो नहीं है, बट आर्थर मिलर का एक ऑलरेडी वर्क है, तो यू कैन गिव an introduction when you're writing an answer for Arthur Miller का work, okay, that is all my sons के टाइम में you can give an introduction कि आर्थर मिलर का एक हिस्टोरिकल प्ले भी था जो उसने लिखा था, that is क्रूसिबल, ठीक है। तो ऐसे करके आप करोगे। ये आपका पेज नंबर 31 को है, ब्लॉक 1 यूनिट 3। नेक्स्ट है पोएट्रिक ड्रामा, ठीक है। इफ़ यू सी दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट है पोएट्रिक ड्रामा। पोएट्रिक ड्रामा भी वही से ही लिया गया है, ब्लॉक 1 यूनिट 3 से ही लिया गया है, दैट इज़ पेज 32, नेक्स्ट पेज ही है वो वाला, ठीक है। तो पोएट्रिक ड्रामा एज यू सी हियर, तो पोएट्रिक ड्रामा क्या है,
एक ऐसा ड्रामा का फॉर्म जो कि वर्स फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, दैट इज़ पोइटिक ड्रामा। ये बहुत ही एक यूनिक ड्रामा है, ठीक है, जो दो फॉर्म्स को मर्ज करता है। एक देखो, एक यहाँ पर जैसे दिया गया है पोएट, दैट इज़ पोएम, एंड दूसरा है ड्रामा। तो दो फॉर्म्स को मर्ज किया गया है। जैसे यहाँ पर अगर आप खुद के समझने के लिए देखोगे, एक है पोएम प्लस दूसरा है ड्रामा, ठीक है। तो ये दो चीज़ के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो इन पोएटिक ड्रामा द डायलॉग इज़ रिटन इन वर्स फॉर्म में लिखा गया है, जो कि पोएट्री का मेन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि क्या पोएट्री को डिफाइन करता है। तो पोएटिक ड्रामा का क्या है, यहाँ पर वर्स फॉर्म में लिखा गया है, इसीलिए इसको पोएटिक ड्रामा बोला जाता है। विच इज़ इन इंग्लिश इज़ यूजुअली द ब्लैंक वर्स, ठीक है। अब ब्लैंक वर्स क्या होता है, अगर आप देखोगे कि उसमें राइम नहीं होते, ठीक है। तो ब्लैंक वर्स के बारे में आप अगर और सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, बट उसमें राइम एक नहीं होता, उसका राइम स्कीम नहीं होता है, ठीक है। तो ब्लैंक वर्स में है, और दिस वाज चीफली एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ टी एस एलियट, एरिट क्रिस्टोफर। यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया गया है, राइट, मर्डर इन द कैथेड्रल, फैमिली रियूनियन, फिर द कॉकटेल पार्टी, ये सब एग्जाम्पल्स दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर और भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख लेना। फिर यहाँ पर लिरिक्स एंड बैलेड्स वर ड्रामाटाइज्ड इन अ यूनिक एंड स्टाइलाइज्ड वे, डायलॉग्स became formal poetry, blood wedding and yarma are rare dramatic presentations of this kind. ओके, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर पोएटिक ड्रामा आ चुका है, ठीक है, फिर हिस्ट्री प्ले भी आ चुका है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे इसका जो डिफरेंट फॉर्म्स है जो नहीं आया है उसको आप ज़रूर से देख लेना। जैसे एपिक थिएटर है, ठीक है, फिर रियलिस्टिक ड्रामा है, फिर प्रॉब्लम प्लेज है। इसके बारे में आप लोग ज़रूर से देख लेना, जो जो इस पेपर में जून में नहीं आया है उसके चांसेस, हाई चांसेस रह जाएंगे कि आपको देखना है। इसको आप देख लेना, ठीक है, एक बार जस्ट रीड थ्रू कर लेना, बट इसके बाद वाला जो चीज़ जो नहीं आया है उसको ज़रूर से देखना है, जो पेपर में नहीं आया है। उसके बाद है नेक्स्ट ग्रीक थिएटर। ओके, सो ग्रीक थिएटर अगर आप देखोगे, इफ़ यू सी द ग्रीक थिएटर, ओके, ग्रीक थिएटर क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये एक बोल सकते हो कि जो पहला थिएटर जो आया था वो ग्रीक के टाइम में था, ठीक है। द ग्रीक वे द मोस्ट सिविलाइज्ड, अर्ली सिविलाइज्ड सिविलाइजेशन, जहाँ पर सब चीज़ बहुत अच्छे से होता था, ठीक है। चाहे वो मैथमेटिक्स हो, लिटरेचर हो, बहुत सारा चीज़ ग्रीक से ही स्टार्ट हुआ है। चाहे वो ड्रामा हो, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हो, ठीक है। तो लेट्स गो ऑन टू ब्लॉक 1 यूनिट 1, ठीक है, एंड डू सी द पेज नंबर्स एज वेल। अगर कोई पेज नंबर आप लोग को नहीं मिलता है ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पेपर में, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से बता देना। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन एज क्वेश्चन के साथ साथ मैं पेज नंबर भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रीक थिएटर में क्या है, पेज 15, 10, 11। ओके, लेट्स सी इसमें कहाँ पर है, चलिए देखते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ग्रीक थिएटर कहाँ है, ये ब्लॉक 1 में है, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ को देखेंगे, ठीक है, ब्लॉक 1 यूनिट 1 में है। तो हम लोग ये चीज़ को थोड़ा देख लेंगे कि वेयर इज़ ग्रीक थिएटर। ओके, इफ़ यू सी द पेज इट्स हियर। ओके, यहाँ पर आपका कहाँ पर है, 15, ठीक है, पेज नंबर 15 में भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पेज नंबर 15 और 10, 11 में भी आई थिंक सो यहाँ पर दिया गया है। लेट्स चेक ऑन 10 एंड 11 अगर वहाँ पर कुछ ग्रीक थिएटर के बारे में दिया गया है कि नहीं। देन वी विल लुक ऑन टू पेज नंबर 10। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। देखिए 10, 11 में भी एक इंट्रोडक्शन दिया गया है ग्रीक थिएटर का, ठीक है। ग्रीक थिएटर जो कि ग्रीस में था, एथेंस में। यहाँ पर कुछ राइटर्स और ग्रीक प्लेलिस्ट के बारे में भी बताना पड़ेगा। यहाँ पर भी दिया हुआ है, 10, 11 में भी दिया गया है और 15 में भी दिया है, पेज नंबर 15 दोनों जगह में दिया गया है। तो आप लोग दोनों को रीड कर लेना। यहाँ पर स्पेशली अगर आप देखोगे ना तो एथिका एथेंस में है, और यहाँ के कुछ प्ले राइट्स हैं, इसको ज़रूर से देख लेना। जैसे सोफोक्लेस है, ठीक है, यूरोपिडेस है, एस्काइलस है, ये सब चीज़ को ज़रूर से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कैसे टाइप के फॉर्म्स ऑफ ग्रीक थिएटर होते थे इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये 11, 12 में आपको मिल जाएगा। जैसे इसका क्या वर्क्स है, सोफोक्लेस का क्या वर्क्स है, छोटे में आप बता सकते हो क्योंकि ये 200 वर्ड्स का ही है, ठीक है। तो सोफोक्लेस हुआ, यूरोपिडेस हुआ, ठीक है। जैसे सोफोक्लेस का इडिपस एट कॉलोनस है, ठीक है, बहुत सारे वर्क्स है। इडिपस द किंग है, ठीक है। देन इडिपस रेक्स है, बहुत सारा आप देखे होंगे
कि आप ग्रीक थिएटर के बारे में अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। फिर यहाँ पर 15 में भी यहाँ पर दिया गया है एंशिएंट ग्रीक में कैसे करके थिएटर फॉर्म हुआ था। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर देख लेना। द थिएटर इन एपिडोरस, ठीक है, थिएटर इन स्टोन। एपिडोरस एक सिटी था और एपिडोरस एक स्मॉल सिटी था और थिएटर उसमें एक वही सिटी में एक थिएटर इन एपिडोरस था। ठीक है, तो थिएटर इन स्टोन को बताया जा रहा है कि एपिडोरस में एक स्टोन थिएटर टाइप का था। ठीक है, तो इसके बारे में आप ज़रूर से देख लेना। इसमें थिएटर फिर से जैसे स्टेज के बारे में एक मतलब डिफ़ाइन किया गया था कैसा था नहीं था, इसके बारे में भी यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया कि कैसा है, जैसे वहाँ पर क्या सेट है। ठीक है, कैसे सेकेंडरी स्टोरी लेवल है, 8 to 10 फीट डीप रनिंग द एंटायर लेंथ ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। तो अगर आप देखोगे दो चीज़ यहाँ पर दिया गया है। पहले ग्रीक थिएटर में अगर आप देखोगे, अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे तो वहाँ पर कुछ जो ग्रीक थिएटर का जो प्ले राइट्स थे उसके बारे में बताया गया था। इस ग्रीक थिएटर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो स्टेज है, स्टेज के बारे में बताया गया है। तो आपको ना ये चीज़ को एनालिटिकल वे में पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ है। तो अगर आप देखोगे वो वाला ग्रीक थिएटर में, दैट इज़ ऑन पेज 10 and 11 में, वहाँ पर एक प्ले राइट्स के बारे में बताया गया था कि वो कैसे प्ले राइट्स थे, वहाँ पर कौन कौन से प्ले राइट्स थे, क्या क्या वर्क्स था। और यहाँ पर थिएटर का जो स्टेज है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि स्टेज कैसा था, ग्रीक थिएटर के टाइम में स्टेज कैसे करके डिफरेंट था। ठीक है, या कैसे करके उसको यूनिक बनाता था। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे हैं। ये दोनों को थोड़ा थोड़ा करके अगर आप लिखोगे तो 200 वर्ड्स में ऐसे करके फॉर्म कर सकते हो। बहुत टाइम में आंसर में आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, उसको आप कंबाइन करके कर सकते हो। ओके, उसके बाद है कॉमेडी। कॉमेडी क्या है, चलिए देखते हैं। ये थोड़ा लेस सीरियस फॉर्म है, ट्रेजेडी थोड़ा सीरियस फॉर्म था। अब हम लोग जाएंगे ब्लॉक 1 यूनिट 3। एंड इफ़ यू ऑल हैव नोटिस्ड, मैंने पहले भी बताया कि ये ज़्यादातर ब्लॉक 1 से ही है। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि इस एनालिसिस का 2 पार्ट्स हो, क्योंकि आई डू नॉट वांट टू ओवर एक्सटेंड इट, और मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन भी देना है इस पेपर के रिलेटेड। तो आप लोग इसके सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर से देखना। ठीक है, क्योंकि आई डू नॉट वांट टू ओवर एक्सटेंड द वीडियो इन एक्सप्लेनिंग द थिंग्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, स्पेशली इन दिस पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अब हम लोग देखते हैं ब्लॉक 1 यूनिट 3 में। ठीक है, सब कॉन्टेक्स्ट 3.3। ठीक है, ओके, हाँ, यहाँ पर टाइप्स ऑफ कॉमेडी को भी आप ज़रूर से देख लेना। कॉमेडी क्या है इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं कि एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल कॉमेडी फोकसेस ऑन प्लेजर एंड अम्यूजमेंट। द स्पेक्टेटर्स आर मेड टू फील कॉन्फिडेंट दैट नो ग्रेटर डिजास्टर विल ऑकर एंड यूजुअली द एक्शन टर्न्स आउट टू बी हैप्पी फॉर ऑल। ठीक है, वो बहुत ही लाइटर वे में होता है और वो सबके लिए एक फन फॉर्म टाइप का होता है। ठीक है, एक रिलीफ टाइप का, ताकि टेंशन को रिलीफ मिले। ठीक है, देखिएगा ट्रेजेडी में भी बहुत सारे जगह में ना वो चीज़ को लेस यूज्ड फॉर्म में या लेस स्ट्रेस्ड फॉर्म में वो दिया गया था। एक वर्ड है कॉमिक रिलीफ करके भी, वो ट्रेजेडी में बहुत यूज़ होता है। लाइक कुछ कुछ जगह में ट्रेजेडी में भी थोड़ा ऑडियंस को थोड़ा, तो क्योंकि वो प्ले के हिसाब से होता था तो इसको कॉमेडी का फॉर्म में दिया जाता था। कॉमेडी इज़ बहुत लाइटर फॉर्म। यहाँ पर एलेडाइस निकोल का 3 टेक्निक्स ऑफ कॉमेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका एक राइटर या प्ले राइट के बारे में बताया जा रहा है तो उसको ज़रूर से देखिएगा कि विच क्रिएट्स अ कॉमिक डिटैचमेंट। ठीक है, एक कॉमिक डिटैचमेंट यूज़ होता है। वी लाफ एट द हार्डशिप्स ऑफ द कॉमिक कैरेक्टर्स बिकॉज द ऑथर सेट्स देम एट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। डेरिजन, इनकॉन्ग्रुइटी एंड ऑटोमेटिज्म, मतलब उनके जो एक्शंस पे है, हम लोग ऑथर के जो जैसे करके उसको सेट किया जाता है, हम उनके एक्शंस पे, उनके बिहेवियर पे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोग को हंसी आता है। आप अगर देखोगे, हम लोग तो एक बुक पढ़ रहे हैं, उस टाइम में एज अ थिएटर फॉर्म होता था जो कि प्ले में होता था। ठीक है, तो वो ना एक सोसाइटी या एक पर्टिकुलर ऑडियंस को ना एक रिलीफ देता था फ्रॉम एवरीडेज टेंशन ऑफ लाइफ। ठीक है, इसीलिए अम्यूजमेंट, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू ऑल सी, इट्स टोटली एन ऑफ टॉपिक, देयर इज़ कपिल शर्मा शो एंड मैनी अदर कॉमिक शोज इन आवर प्रेजेंट टाइम एज वेल, जहाँ पर ये चीज़ को ना बहुत लाइटर वे में दिया जाता है। ठीक है, तो कॉमेडी वैसा टाइप का है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमेडी को आप देख लेना। ठीक है, ये कहीं पर इस बार भी आ सकता है, ये हाई चांसेस है। फिर टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी भी आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट सेशन ऑफ दिस। और जब आप कॉमेडी के बारे में लिखते हो तो थोड़ा सा टाइप्स ऑफ कॉमेडी का कुछ फॉर्म्स थोड़ा लिख सकते हो, अगर आपको लगता है याद रहता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ को बताया गया है, जैसे फूल या जेस्टर के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, जो शेक्सपियर्स 12th नाइट में भी है। ठीक है,
फिर टचस्टोन के बारे में भी बताया गया है अगर आप देखोगे, ठीक है। टचस्टोन फ्रॉम एज यू लाइक इट फ्रॉम शेक्सपियर, बहुत सारे प्लेज में है जहाँ पर शेक्सपियर एज अ होल एक फूल या जेस्टर को रखता है जो कि हायर क्लास ऑफ क्वींस और मेड्स और जो क्वींस जो रहते हैं या अगर आप प्रिंसेसेस को देखोगे तो उसमें क्या है कि उस टाइम में जस्ट टू एंटरटेन देम और एंटरटेन द किंग्स एंड क्वींस इन द कोर्ट इटसेल्फ, they used to keep fools or jesters in order to entertain them due to their high pertaining life of seriousness and all, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ है कि कॉमेडी एक अलग फॉर्म है जो कि बहुत ही लाइटर फॉर्म है, और एक फॉर्म ऑफ लाइक कॉमिक कैरेक्टर्स में अगर आप देखोगे उसमें एक रिडिक्यूलनेस या एक फन टाइप का एलिमेंट है, ठीक है, जहाँ पर किसी के एक्शंस पे या किसी के बिहेवियर पे या किसी के बातों पे या किसी के डायलॉग्स पे एक कॉमिक सेंस बताया जाता है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। अगर आप देखोगे तो मैं कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि ये ब्लॉक 1 का है, ठीक है, और सेक्शन ए का है। सेक्शन बी और सेक्शन सी हम लोग नेक्स्ट चीज़ में देखेंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ से कैसे करके आप क्वेश्चंस फॉर्म करोगे, ट्रेजी कॉमेडी इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं कुछ चीज़ बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। ट्रेजी कॉमेडी ज़रूर से पढ़ लेना, दैट इज़ ट्रेजिडी प्लस कॉमेडी दोनों चीज़ है जो कि है यहाँ पर। आप ये चीज़ को ज़रूर से कोट कर सकते हो, लाइफ इज़ अ कॉमेडी टू दोज हु थिंक, अ ट्रेजिडी टू दोज हु फील, ठीक है, हॉरेस वॉलपोल का, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री प्लेज तो हम लोग का आ चुका है, फिर पोएटिक ड्रामा, ठीक है, प्रॉब्लम प्लेज, ये सब चीज़ देख लेना। 3 यूनिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ये टाइम में आ सकता है, तो ये मैं इस साल का सेशन के बारे में भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ अलॉन्ग विथ दिस जून 2022 सेशन, बिकॉज पेपर एनालिसिस में स्पेशली फॉर दिस पेपर यू हैव टू रीड अलॉट, ठीक है, ताकि आप चीज़ को समझ पाओ। फिर एपिक थिएटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बर्टोल्ट ब्रेचट के बारे में बताया गया है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल थिएटर का भी है, इसमें एक्सपेरिमेंट यहाँ पर अगर आप देखोगे इन जैसे एक्सपेरिमेंटल थिएटर के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। उसके बाद थिएटर ऑफ अब्सर्ड है, ठीक है, जहाँ पर अगर आप देखोगे थिएटर ऑफ अब्सर्ड क्या है इसके बारे में आप देख लेना, ठीक है। क्लासिकल सांस्कृतिक थिएटर हम लोग का नेक्स्ट लॉन्ग आंसर में है, तो ये आया था जून 2022 में, तो इसको फिर भी आप देख लेना क्योंकि एक बहुत बड़ा फॉर्म है, ठीक है। और इसके बाद स्पेशली ब्लॉक 4 को आपको बहुत ब्लॉक 1 यूनिट 4 को आपको अच्छे से देख के जाना है क्योंकि ये पिछले बार नहीं आया था, ठीक है। तो हाई चांसेस है कि डेवलपमेंट्स इन 20th सेंचुरी ड्रामा आने का बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से कुछ चीज़ आपको राइटर्स के बारे में या इसके बारे में बोल सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको अगर देखोगे कि यहाँ पर राइटर्स के बारे में बताया गया है, कुछ राइटर्स आप एक बार रीड थ्रू कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और कुछ राइटर्स के बारे में आप लोग को वर्क्स के थ्रू भी पता चलेगा, ठीक है, जैसे आर्थर मिलर हुआ, ठीक है, फिर मोहन राकेश है हम लोग के वर्क में, ठीक है। और एक है आपका नुगुगी या नुगुगी वा थियोंग ओ, ठीक है, जो लास्ट आपका है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट, ठीक है। ये ब्लॉक 1 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। आई विल रैप अप इन 25 मिनट्स क्योंकि ये फर्स्ट सेशन ऑफ द वीडियो है जहाँ पर मैं सिर्फ ब्लॉक 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आया था या आने का चांसेस है, ठीक है, प्रोबेबल एज वेल एज इम्पॉर्टेंट ऑफ द क्वेश्चंस। फिर यहाँ पर अगर आप ब्लॉक 1 यूनिट 1 में देखोगे तो ग्रोथ ऑफ ड्रामा भी पूछ सकता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क, ओरिजिन ऑफ ड्रामा और थिएटर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ ड्रामा और थिएटर कैसे करके हुआ था इसके बारे में आपको देखना है कि कैसे करके वो आया था। जैसे मैंने बताया कि ग्रीक थिएटर का जो पहले था, वेस्टर्न थिएटर और ग्रीक थिएटर पहले आया था, ठीक है। ग्रीक इज़ द एंशिएंट सिविलाइजेशन जहाँ पर बहुत सारे चीज़ों का इन्वेंशन हुआ है, बहुत सारे चीज़ का क्रिएशन हुआ है, चाहे वो मैथ्स हो, लिटरेचर हो, आर्ट्स हो, आप अगर देखोगे तो बहुत सारा चीज़ इसमें मिलेगा। यहाँ पर ग्रीक थिएटर के बारे में तो ऑलरेडी बताया गया है, उसका एक पार्ट था, ठीक है। ग्रोथ ऑफ ड्रामा, ड्रामा कैसे करके वो एक फॉर्म इमर्ज हुआ है इसके बारे में आप देखना। जैसे ग्रोथ ऑफ ड्रामा अगर देखोगे तो उसका एक प्ले फॉर्म में पहले था जो कि प्ले फॉर्म थिएटर में होता था, अब ड्रामा क्या है कि वो थिएटर में हुआ है। फिर यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिस्ट्री, मिरेकल प्लेस और इंटरल्यूड्स, इसमें से एक क्वेश्चन आने का हाई चांसेस है, 90% चांसेस है कि मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस और इंटरल्यूड्स के अंदर में ज़रूर से आएगा। फिर 3 यूनिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरल्यूड्स क्या है ये देख लेना आप, ठीक है,
ये मिस्ट्री प्लेज, मिरेकल प्लेज, और अगर मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं इसके बारे में और भी वीडियो बनाऊंगा इसको एक्सप्लेन करते हुए, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू विच व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इन इट। ठीक है, इंटरल्यूड्स क्या है ये आपका पेज 14 में है। ठीक है, तो ये ज़रूर से देख लेना। फिर टाइप्स ऑफ स्टेजेस क्या है, ठीक है, ग्रीक थिएटर तो आया है, इसके साथ साथ मिडिवल प्लेज, एप्रॉन स्टेज आया था, तो दूसरा स्टेजेस आने का भी चांसेस है, इसको एक बार रीड थ्रू कर लेना आप लोग। ठीक है, सो दिस इज़ ऑफ द अगर आप देखोगे, मैं एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रामा को भी देख लेता हूँ। तो एक ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में प्लॉट क्या है, ठीक है, फिर कैरेक्टर क्या है, सेटिंग क्या है। ठीक है, 3 यूनिटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आने का 90% चांसेस है, और इसका क्योंकि ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ड्रामेटिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। थ्री यूनिटीज़, दैट इज़ टाइम, प्लेस एंड एक्शन बाय एरिस्टोटल। तो इसको ज़रूर से आपको एक्सप्लेन करना है। अगर मेरे पास चांस होता है तो मैं डेफिनेटली आई विल गिव यू ऑल अनदर वीडियो फॉर एक्सप्लेनिंग दिस इंपॉर्टेंट स्टफ। ठीक है, फिर ड्रामेटिक स्ट्रक्चर जैसे एक्ट एंड सीन, ये सब चीज़ के बारे में भी आप देख लेना। ठीक है, क्या है कॉमिक रिलीफ, क्या है डू एक्स पसीना, क्या है, इसका चीज़ को देख लेना आप लोग। ठीक है, एक बार रीड थ्रू कर लेना। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन जो कि आ सकता है। ठीक है, ये ब्लॉक 1 का इंटरप्रिटेशन था, तो आई गेव अ जिस्ट ऑफ दिस ऑफ ब्लॉक 1। आशा करते हैं आप लोग को ये चीज़ समझ में आया है कि ब्लॉक 1 को कैसे करके आप लोग अटेम्प्ट करोगे, स्पेशली 3 यूनिटीज़, फिर मिरेकल प्लेज, मिस्ट्री प्लेज, इंटरल्यूड्स, ये सब चीज़ को ज़रूर से देख लेना। फिर अगर आप देखोगे ट्रेजिडी का जो फॉर्म्स था, कोई भी फॉर्म्स में से एक ट्रेजिडी पूछ सकता है, मेलोड्रामा पूछ सकता है, या कोई भी फॉर्म्स पूछ सकता है, फिर एपिक थिएटर। फिर अगर आप देखोगे एपिक थिएटर के साथ साथ अगर आप देखोगे कि 3 यूनिटीज़ तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ सेंटिमेंटल कॉमेडी, हीरोइक कॉमेडी, जो हीरोइक ड्रामा, ये सब चीज़ आप देख लेना। टाइप्स ऑफ ड्रामा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल जो आप देखोगे वो है 3 यूनिटीज़ का। 3 यूनिटीज़ का चांसेस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है सेक्शन ए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो का पार्ट 2 होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिक्टली ऑन द टेक्स्ट, जो कि 80 मार्क्स का होगा, और ये मेन पार्ट होगा कि हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, इस पे हम लोग कुछ स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे कि कैसे करके हम लोग पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, जिससे इस पेपर को आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। और इसका एक प्लान भी होगा, जो कि एक प्लान ऑफ एक्शन भी है, हम लोग POA, जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। We will be discussing about the text of 80 marks question in proper. ठीक है, तो hope you all like this video, and please watch the second video as well. Take care and have a nice day, and please like, share and subscribe if you like the video. Thank you so much.